کسی کی کھیتی برباد کر دیتے ہیں، کسی کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ روڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے اور میرے نبی یہ فرماتے ہیں، کیا اماطۃ الاذی عن طریق، ہر وہ چیز جب چلنے والا انسان چلے اور اس کے پیر میں چبھنے کی وجہ سے اگر اسے تکلیف ہو تو اسے ہٹا دو۔ اب رسول پاک سے پوچھے یا رسول اللہ یہ ہٹائے کیوں؟ ہم دیکھ لیے ہیں، دیکھ کر کے ہٹ جائیں گے۔ میرے سرکار کا جواب ہوگا، اب سرکار سے یہ بھی پوچھو یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کے لیے ہٹا دے؟ تو میرے سرکار کا یہ جواب نہیں ہوگا کہ ہاں مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہ مطلق ہے۔ میرے سرکار یہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو انسانیت کو، اب چاہے وہ جس دھرم کا، جس مذہب کا ہو، جس مذہب کا وہ فالوور ہو، میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہے، پتا ہے کہ اس سے تکلیف کسی انسان کو پہنچ سکتی ہے، ہٹا دو۔ شیشہ ہے، کانٹا ہے، روڑا ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ہٹا دو۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھایا۔ جب ہمارا اسلام یہ سکھایا ہے، امام حسین سے ہم نے یہ سیکھا ہے، تو امام حسین کے خیمے میں 72 لاشیں موجود ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین کے عقیدت مند ہے، امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، امام حسین کے نام سے سبیل لگاتے ہیں، امام حسین سے جو ہے ہم اپنی محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں یہ صرف جو ہے لسانی ہے یا دلی بھی ہے؟ اگر لسانی ہے تو اس پر کوئی کلام نہیں، لیکن اگر قلبی ہے تو میں کلام کروں گا، اس لیے کہ جس گھر میں موت ہے 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اگر مسلمان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس گھر میں 72 لاشیں پڑی ہے وہاں پر تماشا کر سکتا ہے، وہ وہاں پر ڈھول بجا سکتا ہے، وہاں پر شراب پی سکتا ہے، وہاں پر شریعت کے خلاف قدم اٹھا سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اکھاڑے پر نہ جائیں، اکھاڑے پر جائیں گے۔ جو ہمارے اندر ہنر ہے وہ لاٹھی کی صورت میں ہو، تلوار کی صورت میں ہو، بانے کی صورت میں ہو، ہم دکھائیں گے، ہم کریں گے۔ اس کی ضرورت ہے، ہنر جائیں گے اکھاڑے پر، اس کے لیے شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن جو خرافات کرتے چھوٹے چھوٹے پودے کاٹ دیتے ہیں، میرے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے، امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ چکے تو اب آئیے، اب میں شادی کی طرف لے کر کے چل رہا ہوں۔ یہ رسول کی سنت ہے، رسول نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، کسی میں بھی باراتی کوئی باراتی بن کر کے نہیں آیا، کوئی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، چاروں بیٹیوں کی شادی میں کوئی باراتی نہیں۔ اور رسول پاک سے جن جن لوگوں نے، رسول پاک کی بیٹیوں سے جن جن لوگوں نے نکاح کیا، ان کے گارجین یا دولہے نے یہ فرمائش نہیں کیا ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، جب میرے ساتھ لوگ آئیں گے ان کے لیے مٹن الگ ہو، چکن الگ ہو، بریانی الگ ہو، فلانے جگہ کی باورچی ہو، اس طریقے کا کھانے کا کیجیے گا۔ تاریخ کہیں نہیں بتاتی، حدیث پاک میں کہیں نہیں ہے۔ میرے رسول نے نہ تو اس کا حکم دیا، نہ اس چیز کو میرے سرکار نے پسند کیا۔ آج ہوتا کیا ہے؟ شادیاں نہیں ہوتی ہے، بیٹی والے کا خون چوسا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑی آسان ہے یہ لفظ، نہیں، یہ خون چسنے کی وجہ سے بیٹیاں جل کر کے مرتی ہیں، بیٹیاں زہر کھا کر کے مرتی ہیں، بیٹیاں پھانسی لگا کر کے مرتی ہیں، تو بیٹیاں حلال بھی ہو جاتی ہیں۔ صرف ہم اپنے طریقے کو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے جو طریقہ ہم نے رائج کیا ہے، جس کا خمیازہ ہم سب بھگت۔ یہ جو تماشے ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے، عورتیں ٹولی بناتی ہے، کسی چاپا کل پر جا کر کے 5 ٹیکے ایسے لگاتے ہیں۔ یہ ٹیکنا ہمارے دھرم میں نہیں ہے، یہ 5 ٹیکے لگانا ان عورتوں سے پوچھو، یہ 5 ٹیکے جو لگائے جاتے ہیں کس معنی کر کے ہمیں سمجھاؤ۔ لیکن گارجین ہے وہ بھی نہیں بولتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے، حدیث پاک نہیں سنا، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آپ کی بیوی کر رہی ہے
आपकी बेटी कर रही है या आपके रिश्ते में जो भी हो, अगर गलत कर रही है, शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, तो कयामत के दिन उसका हिसाब बाद में होगा, पहले आपसे पूछ लीजिए। हिसाब उसका बाद में, टीका लगाई है उसका तो हिसाब होना है, लेकिन बाप हो पहले आप फंसोगे, पहले आप जवाब दोगे, पहले आपको सुनना पड़ेगा, पहले आप सजा। कहाँ है बाप, कहाँ है दादा और कहाँ है वो भाई कि जब डीजे पर हमारी बच्चियां झूमने लगती हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। चलो शादी का माहौल, शादी का माहौल है तो हम घर को ऑर्केस्ट्रा खाना बना देंगे। शादी खाना आबादी होता है, लेकिन जिस घर में बच्चियां नाचती है वहां से रहमत के फरिश्ते पहले नाचते। जहां शादी होती है, रसूल की सुन्नत अदा की जाती है, आसमानी फरिश्तों का एक झुलमुट आता है, चारों तरफ से उस घर को। लेकिन जब मिलाद के बाद में डीजे पर लोग झूमना शुरू करते हैं, ये फरिश्ते चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ये चले जाते हैं। जब वापसी होती है, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला तेरे रसूल की सुन्नत फलाने जगह पर अदा होने वाली थी, हम सब वहां पर गए थे, लेकिन हिरमा नसीबी है, ए मालिक मौला तेरे रसूल की सुन्नत की अदायगी से पहले मैंने उनको देखा कि वो नाच रहे थे, मैंने उनको देखा कि उर्यानियत का बिल्कुल पुतला बने हुए थे, मैंने उनको देखा इस तरीके की खुराफात में मुलव्विस थे। फरिश्ते को अल्लाह ताला गवाह बना देता है, एक फरिश्ते तू गवाह रहना, जब वो मेरी बारगाह में आएगा उसका हिसाब से देना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर राई के दाने के बराबर अच्छाई आपके अंदर है, इसका भी हिसाब है, और अगर बुराई है तो उस बुराई का भी हिसाब है। और अल्लाह ताला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और जब मेरा कोई बंदा मुझसे कुछ तलब करता है, फरियाद करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे से करीब हूँ। फइन्नी करीबुन उजीबु दावत। क्या फरमाता है? जब मेरा बंदा मुझसे किसी चीज को तलब करता है, अब दलील पकड़ने वाले लोग कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, चाय सुबह सुबह बीवी से मांगो, दो तमाशा। ये कौन सी बात हो गई? जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जबकि हदीस पाक में है मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह युती, अल्लाह मुझे देता है, और मैं सारी कायनात को सबको मैं देता हूँ। अल्लाह मुझे देता है और मैं सबको तकसीम करता हूँ। और एक और हदीस बात सुन लो, ऊतियत में मफातिह खज़ाइनुल अर्ज़ ववदियत फी यदी। ज़मीनों आसमान में जितने खजाने हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं ऊतियत में मफातिह खज़ाइनुल अर्ज़ ववदियत फी यदी। ज़मीनों आसमान में जितने खजाने हैं, उन तमाम खजानों की चाबी मेरे हाथ में है। जाओ अल्लाह से मांगो, जाओ अल्लाह से मांगो, या तो इसे गलत कहो या उसे गलत कहो। क्या फरमाया सरकार ने? ऊतियत में मफातिह खज़ाइनुल अर्ज़ ववदियत फी यदी। जमीन और आसमान में जितने खजाने हैं, उन तमाम खजानों की चाबी मेरे हाथ में रखी है। अल्लाह युती वाना कासिम, अल्लाह मुझे देता है, दुनिया वाले को मैं तकसीम करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, अल्लाह जो देता है वो उसकी ज़ाती है, वो अपने ज़ाती तौर पर देता है, और मुस्तफा रब से जो लेते हैं, ये मुस्तफा जो हमें देते हैं ज़ाती तौर पर नहीं, रब की अता से, रब की अता से देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे सब कुछ देने वाला अल्लाह है, तो हम नबी से क्यों मांगे, वली से क्यों मांगे, खाजा से क्यों मांगे, तो फलाने से क्यों मांगे? हम खाजा से भी मांगते। 10 रुपए की जरूरत पड़े तो अब्बा से मांगोगे, जो हिंदुस्तान का राजा है उससे नहीं मांगोगे, मिलता है। अब अगर हमसे दलील कोई पूछे और हमसे कोई किताब तलब करे तो एक नहीं हजारों दलीलें हम दे दें, पीछे बोल करके क्या करोगे? खाजा बाबा के यहाँ जाना शिर्क हो गया, खाजा बाबा के यहाँ जाना बिदअत हो गया, तो फिर तो सरकार का भी मकबरा मदीने में है, तब क्या करोगे?
अरे तुम्हारे बाप का भी तो कब्र किसी कब्रिस्तान में है, वहां भी जाना शिर्क हो गया। किसी कब्रिस्तान में जाना भी शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा। कब्रिस्तान में जाना शिर्क को बिदअत नहीं होगा। ये अजीब अजीब सोच के लोग पैदा हो गए दुनिया में। यार बैठो, भी कुरान पढ़ते हैं, थोड़ा कुरान से भी हमसे बहस करो, हदीस से भी बहस करो, इजमा से भी बहस करो। लोग कहते हैं कि अरे इन मौलवियों को तो अरबी आती ही नहीं है। कितनी अरबी, 5 घंटे बोलाओ, हम बोलते हैं कीमती रासे आख मसीह कदम मैंने समाए कुल्ला लशिया अल्लाह यूतीना अल्लाह यूतीना व नहनु नाखुस मिन वसीलति नबी सल्लल्लाहु लैस बिनफ्सी बल बिवसीलति नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवसीलति सहाबा व बिवसीलति औलिया व बिवसीलति सुलहा। कौन कहता है, कौन कहता है? तो दोस्ताने मुहतरम, अब आइए पते की बात बता कर, उलमा इकराम काफी बैठे हुए हैं, मैं पते की बात बता करके, काम की बात बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। वरना जो मौजू हमने अख्तियार किया है तकरीबन 3 घंटा चलेगा और मिला 1.5 घंटे शायद होने। जल्दी पाक पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात याद रखिए, बेगर सलाम पढ़े कोई जाएगा नहीं। हम सलाम पढ़वाएंगे और सबको पढ़ के जाना है। जिसका एतराज है वो मुझसे पूछ के जाएगा। किताब से हवाला एक से नहीं, 20 चाहिए, 40 चाहिए, कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए, यही देके जाऊंगा। लेकिन सलाम पढ़ना होगा, बेगर सलाम के कोई नहीं जाएगा, सलाम पढ़ के जाना है। ठीक है, अब हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। असल टॉपिक पर हम आते हैं। हमने कुरान की आयत पढ़ा, अब उसके बाद में एक हदीस पढ़ा। क्या? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, वसामत शहरहा, और महीने भर का रोजा रखे, व अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, व हाफ़िज़त फर्जहा, और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। मेरे सरकार फरमाते हैं वदखलतिल जन्नह फदखलतिल जन्नह फदखलतिल जन्नह। यानी मेरे सरकार फरमाते हैं कि अगर हमारी घर की औरतें, हम सबकी घर की औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़े, फिर महीने भर का रोजा रखे, फिर अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, फिर अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, तो मेरे सरकार फरमाते हैं फदखलतिल जन्नह। तो ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होंगी। अब जन्नती औरतों के बारे में बता दूं किस्सा। हजरत मैमूना सौदा का नाम आपने सुना? मैमूना सौदा इराक की औरत है, बहुत बड़ी वलिया, बहुत बड़ी वलिया। मिस्र की सरजमी से एक बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आखिर वक्त में जब उनको यकीन हो गया क्या अब मेरे जिस्म से रूह परवाज करेगी, ईशा की नमाज आप अदा करते हैं, अदा करने के बाद में अपने सर को सजदे में रख देते हैं, ज़ारों कतार रोने लगते हैं। रोने के बाद में रब ताला की मुकद्दस बारगाह में फरियाद करते हैं, हे मालिक व मौला, अगर मैंने इतने दिनों तक के तेरी इबादत की है, अगर कोई भी मेरी इबादत तूने कबूल कर लिया है, तो मैं तुझसे एक चीज तलब करता हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में आपने कहा, मालिक व मौला, मैं चाहता ये हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, तेरे नबी के हदीस को पढ़ा है कि जब मुसलमानों का फैसला हो जाएगा, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, तो जहन्नमी आज़ाब चखेंगे, और उसके बाद में जन्नती जब जाएंगे तो वहां पर हुराने बहिश्त होंगी, और होने के बाद में ये उनकी दुनिया बनेगी। अल्लाहु अकबर। इतना जो है हजरत इब्राहिम ने कहा, यार हजरत इब्राहिम ने कहा, हे मालिक मौला, अगर मेरे हक में भी तूने जन्नत का फैसला किया, अगर मैं भी जन्नती हुआ, तो मालिक मौला मैं चाहता हूँ कि जन्नत में मेरी बीवी कौन बनेगी, मैं उसे दुनिया में देखना चाहता हूँ। आवाज आती है, जाओ इराक की सरजमी पर। इराक की सरजमी पर जाओ। कहां से? मिस्र की सरजमी से। अब वहां से चले
चलते चलते इराक की सरजमी पर पहुंचे, लोगों से पूछा, ए लोगों, मैमूना सौदा को जानते हो? जिससे भी पूछते हैं मजाक उड़ा रहा है, जिससे भी पूछते हैं लोग जो है हैरत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सबके सब जो है जब मजाक उड़ाना शुरू किए, उस वक्त में हजरत इब्राहिम ने कहा था, हजरत इब्राहिम ने कहा था कि ए लोगों, मैंने सिर्फ उस औरत का नाम पूछा है, तुम हंसते क्यों हो, मजाक क्यों उड़ाते हो? लोगों ने कहा, बात ही ऐसी कर रहे हो, इस औरत के खाने का कोई ठिकाना नहीं, पहनने का कोई ठिकाना नहीं, कब कहां पर सोती है ये भी किसी को पता नहीं है। अल्लाहु अकबर। और जब लोगों से ये बात सुनते हैं, कहते हैं कि वो जैसी है ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि तुम बताओ मैमूना सौदा कहां है? लोगों ने कहा कि फलाने जंगल में चले जाओ, वहां पर मैमूना बकरी को चरा रही होगी। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम पहुंचते हैं, देखते हैं कि मैमूना सौदा अपनी बकरियों को जंगल में हाँक दी है और नमाज के लिए खड़ी हो गई है, नियत की हुई है। और जब हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि मैं पीछे खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। हजरत मैमूना सौदा है, अपनी नमाज को मुकम्मल करती है, मुकम्मल करने के बाद में हजरत इब्राहिम के तरफ पीछे नहीं देखती है, हजरत इब्राहिम भी उनके चेहरे को नहीं देखे हैं। मैमूना सौदा पूरी जिंदगी ना तो इब्राहिम का नाम सुनी है, ना हजरत इब्राहिम को देखी है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम भी मैमूना सौदा को नहीं देखे हैं, लेकिन रब से फरियाद किया है कि जन्नत में मेरी बीवी कौन बनेगी? ए मालिक व मौला, अगर एक भी इबादत मेरी कबूल है तो मैं चाहता हूं कि जन्नत में होने वाली बीवी को इसी दुनिया में देख लूं। हजरत इब्राहिम पहुंचे हैं, पीछे खड़े हैं, यानी मैमूना सौदा किबले की तरफ जो है रुक करके नमाज को मुकम्मल करती है, पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, पीछे पूरब की तरफ हजरत इब्राहिम खड़े हैं। खड़े होने के बाद में मैमूना पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, पढ़ के कहती है, इब्राहिम मिस्र से चले आए जन्नती बीवी को देखने के लिए। पर हजरत इब्राहिम है हैरत ज़दा हो जाते हैं, जिस औरत को मैं कभी देखा नहीं, जिसे मैं कभी पहचानता नहीं, न वो औरत मेरे बारे में कभी सुनी है, न मेरे बारे में जानती है, न अभी मेरे तरफ वो देखी है, न उसकी तरफ मैं देखा हूँ। ये कैसे जान गई कि मेरा नाम इब्राहिम है, मैं मिस्र की सरजमी से आया हूँ और मैं जो इरादा लेकर के आया हूँ कि अपनी जन्नती बीवी को देख लूं, इसे कैसे पता चल गया? आप हैरत में हैं, हैरत में आप सवाल करते हैं, मैमूना अगर इजाजत हो तो कुछ सवाल पूछ लो। कहा कि एक ही सवाल पूछो, इसके बाद नहीं पूछ सकते। उसके बाद में हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं आने के बाद में ये देखा भेड़ और बकरी में दुश्मनी होती, भेड़ और बकरी में दुश्मनी होती है, यानी भेड़िए बकरी को देखते हैं, फाड़ देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन मैमूना, तुम नमाज पढ़ रही थी और तेरी बकरियों को ये भेड़िए चला रहे हैं, एक एक बकरी के पीछे एक एक भेड़िया। क्या मतलब है? उस वक्त हजरत मैमूना सौदा ने कहा था कि इब्राहिम, अल्लाह के इतने बरगुजीदा बंदे हो, इतना भी तुझे पता नहीं है कि जो अल्लाह का हो जाता है अपनी इबादतों से रब को राजी करने की कोशिश करता है, जो सजदा करता है उसके लिए रुकू करता है, जब दुनिया के सारे लोग सो जाते हैं अपने रब से कुर्बत अख्तियार करने के लिए वो जब तहज्जुद को अपनाता है, अल्लाह ताला इसे लोगों को पसंद फरमा लेता है, जिसका जिक्र उसने कुरान में कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है, किसी से डर नहीं है, कोई हुज़्न मलाल नहीं है। जब मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर रहा है नहीं कर रहा है ये वो बेहतर जानता है, लेकिन इबादत तो उसी की कर रही हूँ। जब इबादत उसकी हो रही है, मेरी बकरियां यहाँ चल रही है, तो मैं अल्लाह के ज़ीमे करम में अपने माल को, अपने बकरियों को लगा दी हूँ। ए मालिक व मौला, मैं तो तेरी इबादत के लिए खड़ी हो गई हूँ जंगल में, अब मेरी बकरियों की हिफाजत तू करना। अल्लाहु अकबर। हजरत मैमूना सौदा कहती है कि जब मैं अल्लाह की हो गई हूँ तो खुदा की सारी खुदाई अब मेरे पीछे पीछे, खुदा की सारी खुदाई मेरे पीछे पीछे। अब शेर भी आए तो मेरी बकरी को नहीं खा सकता। दुनिया का कोई भी ताकत हो, अगर वो चाहे कि मेरी बकरी को नुकसान पहुंचा दे तो नहीं। यही तक के महदूद नहीं, बातें बहुत हैं। हजरत आयशा की बात हम अगर करें, महफिल पाक का इख्तिताम है, मैं रब ताला से बस दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला शादियों में खुसूसन हम सबको नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। कहिए आमीन।
یہ ناچ گانے ڈرامے پٹاخے باجے یہ سب کے سب میں درست نہیں. سب کو مرنے کے بعد میں اپنے رب کو حساب دینا ہے. دنیا کے لہو لعب میں اگر آپ ملوث ہو گئے اور عیاشیاں کیے تو آنکھیں بند ہوں گی, قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی, منکر نکیر جو ہے اس قبر کو مٹی کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور 3 سوال کریں گے اور پھر آپ کے پاس جواب نہ ہوگا. ایک نیتا دینے والا دے گا, پکارے گا کہ میرا نافرمان بندہ ہے, اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو. جب جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گی اس کی تپش سے آپ پریشان ہو جاؤ گے. اس دن سے ڈرو, اس دن سے ڈرو. اور جو نبی تمہارے لیے پوری پوری رات جگے عبادت کیے, رب سے مغفرت کی دعا کی, میری گناہگار امتی ہے, مولا انہیں ہدایت دے, مولا انہیں بخش دے. وہ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب دولہا پہلی رات کو دلہن کے پاس جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف, اگر دولہے نے ایک مرتبہ دل سے کہا اے میری بیوی اب تم میرے ذمہ کرم میں ہو, ایک چیز میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, دنیا کی جو نعمتیں مجھ سے طلب کرو, مانگنا چاہو مانگ لو, میں سب کچھ دوں گا, کیا مجھے ایک چیز دے سکتی ہو؟ بیوی اگر پوچھے کہ ہم بولو, اگر میرے اختیار میں ہے تو میں دوں گی. اس وقت اگر شوہر کہہ دے کسی وقت کی نماز کو ترک, 5 وقت کی نماز ادا کرنا, اگر بیوی کہہ دیتی ہے وعدہ کرا لو, آپ کی نجات کے لیے بہت اہم سامان ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.